Assalamualaikum to all my dear students and everyone who is watching GEMS TV, especially my program, the online lecture, the Bio Teacher with Munira Khan. So guys, as I have told you कि कुछ नया लेकर आने वाली हूँ. There is a surprise for you all. So now the time is over. The surprise is here in front of you. The set is there and there is something very good and very new and very surprising which I am having right now. Presence of this set simply. तो अब आपको कुछ चेंज तो नज़र आ ही रहा होगा और ये चेंज हमेशा अच्छा होता है. चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए. चेंज अच्छे होते हैं, गुड चेंज. तो खैर आपको पता है वी आर डूइंग CIA सिलेबस एंड वी हैव completed 7 chapters and right now in today's class we are starting 8th chapter and that is the human nutrition. So first of all, I'm just telling you a few important things. As you all know that living organisms required nutrition for the survival. They required nutrients for their survival, whether plants, animals or living organisms. Any type of living organism, वो आप कह लें बैक्टीरिया हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो पैरासाइट्स हैं, वो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कुछ भी ले लें, बट दे रिक्वायर्ड व्हाट, दे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फॉर देयर सर्वाइवल. तो यहाँ पर आज हमने अपना 8th चैप्टर जो कि 8th टॉपिक है, अगर हम CIA की लैंग्वेज में बात करें तो दिस इज़ बेसिकली द 8th टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग, ह्यूमन न्यूट्रिशन. और इसके फिर सब टॉपिक्स भी हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सब टॉपिक्स कौन से हैं एंड हाउ मैनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज़ क्लास. Okay, so I was telling you about the 8th chapter that we are starting, that is the human nutrition, and we are having first subtopic that is 8.1 diet. So as you are seeing on the screen के 8.1 diet हम start कर रहे हैं and there are 3 learning objectives that we have to cover. Number 1, list the principal sources of and describe the dietary importance of carbohydrates, lipids, proteins, vitamins C and D only, mineral salts, calcium and iron only, fibers, roughage and water. This is first learning objective. Then moving on to second, name the disease and describe the symptoms resulting from deficiencies of vitamin C, scurvy, vitamin D, rickets, calcium, rickets and iron, anemia. And the third learning objective that we are going to just complete in today's class is understand the concept of a balanced diet. So these are the learning objectives that we have to cover. So as you have seen, there are 3 learning objectives and the very first learning objective is telling us the principal sources of diet. What are the principal sources? What are their importance? So very first thing I'm just going to share. As you are seeing on the screen that there are basically 7 major nutrients we have to discuss in today's class. So these nutrients are, first one is the carbohydrate, then proteins, then lipid, and vitamins, mineral ions, fiber and water. So we have to complete all 7 major nutrients कि ये हमारे लिए क्यों important हैं और इनकी sources क्या हैं. ठीक है. So starting with the very first thing that is the carbohydrate. As we have discussed carbohydrate in previous chapters too, जब हमने biological molecules पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि carbohydrates क्या होते हैं. So carbohydrates basically आपको पता है, पहले हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. एज एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर हेयर कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो एज यू आर सीइंग कि वेरी फर्स्ट थिंग इट इज़ प्रोवाइडिंग अस एनर्जी. एज आई हैव टोल्ड यू कि इट इज़ द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि आपको अगर फ़ौरन एक बूस्ट चाहिए एनर्जी के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, वी आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स और वी आर ईटिंग दैट टाइप ऑफ फूड दैट इज़ इनरिच्ड विद कार्बोहाइड्रेट. तो आपको पता है कि क्या कर रहा है, बेसिकली फिज़िकल एक्टिविटी को इन्हेंस कर रहा होता है. ये इंस्टेंट सोर्स, जैसे ही आपको एनर्जी मिलती है तो आपके मस्कुलर एक्टिविटीज़, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है. जब ऑब्वियस है व्हेन वी आर ईटिंग फूड तो वी आर गेटिंग एनर्जी, एवरी सिंगल सेल व्हेन गेटिंग एनर्जी सो इट विल स्टार्ट वर्किंग. तो आपका जो फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो इंक्रीज़ हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. सो ये क्या हो गई, इट इज़ वन ऑफ दी और इट इज़ यू कैन से द मैनी ऑफ द एडवांटेजेस और द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और इन वेरी सिंपल वर्ड्स एंड वेरी बेसिक थिंग्स यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं. बेसिकली ऑल द शुगरी थिंग्स दैट आर स्वीट इन टेस्ट दे आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ स्वीट थिंग्स. ठीक है.
So you have to remember this thing. So as you have seen and as you have heard the importance of carbohydrates, why they are very important, as it is the instant source of energy. So now we have to discuss the sources of carbohydrates, like from where we are getting carbohydrate. कौन सी ऐसी sources हैं जिससे हमें carbohydrates मिल सकते हैं. Mostly हमें नहीं पता होता, हमें ये पता होता है कि यार ये ज़रूरी है, ये खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी, प्रोटीन्स कम हो जाएंगे, विटामिन्स कम हो जाएंगे, लेकिन वी डोंट नो अबाउट द फूड सोर्सेज के किस में कौन सी चीज़ हमें मिल सकती है, कौन सा ऐसा फूड है जिसको हम खाएंगे तो वी कैन गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन द होल लिस्ट इज़ प्रेजेंट, द पिक्चर्स आर अलॉन्ग विद देयर नेम्स आर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रेजेंट वेरी सफिशिएंट अमाउंट. So as you are seeing, rice, bread, pasta, nuts, or you can say fresh vegetables हैं, fruits हैं, as you are seeing के as you have taste के भाई सारे fruits जो हैं वो sweet in taste हैं, तो that means they are having amount of carbohydrates in them. So अब आपको इन चीज़ों से पता चल गया होगा कि अभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि यार बहुत हम lethargic हो रहे हैं, बहुत ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि बॉडी बस ख़त्म हो गई है. ये क्या होता है? बेसिकली हमारी जब शुगर डाउन होने लग जाती है बॉडी में, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे ब्लड में कम होता है, तो वी आर फीलिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ये सिम्टम्स होते हैं. तो अगर आप उस वक्त छोटी सी एक टॉफ़ी भी खा लेते हैं तो एक वो उसको आपके एक इम्यून सिस्टम को या ब्लड को एक बूस्ट मिल रहा होता है, जस्ट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. So we have done carbohydrates. Now we are moving on the second class, that is the lipid. बेसिकली लिपिड इज़ ऑल्सो नोन एज फैट्स. ठीक है, फैट्स और लिपिड्स एक ही बात है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. लिपिड्स और फैट्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द एनर्जी रिजर्वायर्स. दे कैन रिजर्व द एनर्जी. रिजर्व क्या होता है? ये कुछ एनर्जी, आप ये कहते हैं ना कि भाई हमने यूटिलाइज़ कर ली, अब कुछ एनर्जी बची है, तो वो क्या करेगा? उसको स्टोर कर लेगा. सो फैट्स आर बेसिकली नोन एज एनर्जी रिजर्वायर्स. आपको ये पता है कि जब ख़ास तौर से सर्दियाँ होती हैं तो हमें क्या होता है कि हम ऐसी कुछ चीज़ें खा रहे होते हैं, डाइट में इनटेक करते हैं जिससे हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप रहे. तो अब अगर उसके ऊपर भी मैं आती हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, सोर्सेज की हम बाद में बात करेंगे. पहले हम बात कर रहे हैं importance of lipids and fats. So basically it can transmit nerve impulses as well as you are seeing on the screen कि ये क्या करता है. As I have told you that these type of things are very important. अब इसके functions और भी हैं. transmit कर रहा है impulses को. ये क्या करता है? It can provide medium for the hormones to just move from one place to another. और इसके साथ साथ इसके regulatory functions की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे functions हैं. अब ये insulating layer भी बना रहा है. एज यू ऑल नो कि हमारी स्किन की जो अपर एपिडर्मिस है, इसके नीचे हमारी एक फैट की लेयर होती है जो कि क्या करती है? बेसिकली इट कैन नॉट जस्ट अलाउ हीट टू बी पास आउट फ्रॉम आवर बॉडी. तो ये इंसुलेटिंग लेयर कहलाती है. और ये किस वजह से है? बिकॉज फैट इज़ प्रेजेंट और यू कैन से लिपिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. So basically as you are seeing on the screen कि there are number of food from where we are getting the particular lipid molecule या lipid और fats का amount हमें किस में से मिल सकता है. तो the whole list is present along with the diagram. You can just focus on it कि cheese is enriched with lipid or fat molecule, butter is there, grains are there, there are nuts, so many type of nuts जो आप ये कहते हैं कि भाई हम dry fruits जिसको आप कह रहे होते हैं कि उनमें सब में क्या है? दे आर enriched with lipid और fat molecules. फिर आपके पास ये ऑयली फ़िश है जो कि ख़ास तौर से हम कहते हैं ना सर्दियों में खानी चाहिए मछली, वो आपकी बॉडी को वार्म अप रखती है. तो ये क्या हैं? ये सोर्सेज हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती हैं insufficient amount of lipid and fat molecules. So moving on to the third major nutrient which is very important for our diet to be added in our diet, so that is the protein. As you all know, as we have discussed कि प्रोटीन जितना हमारे बॉडी में मीट है, जितना ये आपके मसल्स हैं, they are being formed by the proteins. ये प्रोटीन्स होते हैं. So if we are seeing कि proteins, basically the building block of protein is the amino acid. So amino acids basically they are joining with each other, they are making protein molecule. So there are number of protein molecules, there are number of different type of proteins, they are present in your body, they are working differently.
तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ये क्या कर रहा है, आपका जो मस्कुलर सिस्टम है, आपके मसल्स को बिल्डअप करता है, आपकी बोन्स को बिल्डअप कर रहा होता है, क्या, प्रोटीन। तो अगर हम इसकी सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स या व्हाट टाइप ऑफ फूड्स आर देयर इन विच देयर इज़ अ हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो आप ये देख रहे हैं द होल लिस्ट इज़ प्रेजेंट कि भाई इन एग यॉक दैट इज़ हैविंग द हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। आप कहते हैं भाई नट्स में भी है, लिवर में भी है, मीट में भी है, तो फ़िश में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स होता है। द होल लिस्ट इज़ देयर। तो ये क्या चीज़ है, ये आपको पता चल रहा है कि यार हम ये सोर्स ऑफ फूड अगर हम यूज़ करें तो इसमें हमारी बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज़ हो सकता है। आप ये कह सकते हैं ना कि भाई हम थोड़े से हेल्दी हो जाएं, तो हेल्दी होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप फिर वो डाइट भी वैसी लें कि वो आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड करें, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो। हम क्या कर रहे होते हैं भाई, हम बेसिकली हमारे टेस्ट बड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के आदी हो गए हैं कि बस यार बाहर का खा लेते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी फूड हम खा लेते हैं, तिक्का बर्गर और ब्रोस्ट और ये वो। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके मुंह के जायक़े हैं। इससे नुकसान ये होता है आपको कि आपको एनर्जी और या वो न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल पा रहा होता, आपकी डाइट में वो प्रॉपर अमाउंट ऐड नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटीन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज़ द बेसिकली vitamins, and vitamins, as you all know, there are so many types of vitamins, and here we are having in our syllabus we have to complete two major vitamins. One is vitamin C and vitamin D. तो ये दो विटामिन्स हैं जो कि हमने डिटेल इन अ सेंस के आपके सिलेबस में हैं, जितना है उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे, उसकी सोर्सेज पे बात करेंगे कि भाई क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, विटामिन सी और डी का होना क्यों ज़रूरी है और उसकी सोर्सेज क्या हैं, मतलब हमें किन चीज़ों से विटामिन सी और डी मिल सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुगेदर बोथ विटामिन सी एंड डी दे बोथ आर जस्ट बूस्टिंग अप द इम्यून सिस्टम। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, बूस्ट अप करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। दे कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग अस एन एक्स्ट्रा इम्यूनिटी। ये क्या करते हैं, अगर हम इस तरह का फूड इनटेक करते हैं जो कि विटामिन सी और विटामिन डी का अमाउंट अपने अंदर रखता है, तो वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। तो अगर हम इसकी सोर्सेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं मेजर जो कि दे आर इनरिच्ड विद विटामिन सी एंड विटामिन डी। सो हेयर इज़ अ होल लिस्ट ऑफ विटामिन डी। सबसे पहले हम विटामिन डी देख लेते हैं कि इन ऑयली फ़िश, इन सैल्मन स्पेशली अ टाइप ऑफ फ़िश जिसमें विटामिन डी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और आपने बड़ा कॉमन है आजकल तो ये सुना होगा कि अक्सर होता है कि भाई विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, अक्सर बोन्स में पेन हो रहा है और या तो आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो ये सारे चीज़ें क्या हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती हैं। तो आपने ख़ास सुना होगा कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो ख़ास डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड कर रहे होते हैं यू हैव टू ईट व्हाट, यू हैव टू ईट फ़िश। ख़ास तौर से सैल्मन फ़िश इज़ इनरिच्ड विद विटामिन डी। फिर इसमें मीट भी है, इसमें रेड मीट और रेड जो है वो मीट, ख़ास तौर से वो आप उसको कहते हैं कलेजी को। फिर इसके अंदर आपके पास लिवर भी है और फिर नट्स आर ऑल्सो देयर, ग्रेन्स आर ऑल्सो देयर। तो इन सब में क्या होता है, अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज़ प्रेजेंट। और अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो एज़ यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन के ऑल दिस सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस हल्की सी जिसमें खटास होती है, ऑरेंजेस आर देयर, लेमन्स हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, एप्पल्स हैं, और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसके अंदर अमाउंट ऑफ विटामिन सी ज़्यादा होता है। तो यू जस्ट हैव टू इनटेक द फ्रूट्स एज वेल। So we have done carbohydrates, proteins, lipids and vitamins, vitamin C and D. Now we are moving on the fifth category or the fifth nutrient that is very important are the mineral ions. So there are a lot of mineral ions, but in our syllabus we have to complete two mineral ions. One is the iron and second is the calcium. ठीक है, तो हम ये दोनों को complete करेंगे। अब first of all if I am telling you about the importance of iron, ये iron basically iron क्या होता है, iron क्या है, it is the major source of hemoglobin. हेमोग्लोबिन, हीम मीन्स आयरन एंड ग्लोबुलिन इज़ द प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन जो बनता है हमारे ब्लड का, जो रेड पिगमेंट है दैट इज़ प्रोवाइडिंग कलर टू आवर ब्लड इज़ बेसिकली द हेमोग्लोबिन। सो इफ़ वी आर सीइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ आयरन, तो आयरन की इम्पॉर्टेंस क्या है, इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
ये क्या करता है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज यू आर सीइंग कि इट कैन बूस्ट द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ब्रेन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एफिशिएंटली। तो ये सारे किसके फंक्शंस हो गए, ये इम्पॉर्टेंस या आप ये कह लें कि क्यों नेसेसरी है हमारे पास हमारी डाइट में एक ऐसे ख़ास मिनरल का होना, दैट इज़ द आयरन, और इसकी इंपॉर्टेंस आपने अभी सुनी। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकेंड मिनरल लाइन, दैट इज़ द कैल्शियम। एज़ यू ऑल नो कि आपने कैल्शियम का तो हमेशा सुनते आ रहे होंगे, भाई दूध पियो उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम दांतों के लिए बहुत, तो ये बहुत कॉमन सा एक मिनरल लाइन है, दैट इज़ बेसिकली द कैल्शियम। एंड कैल्शियम इज़ डूइंग व्हाट, इट इज़ मेकिंग आवर बोन्स, मेकिंग आवर टीथ मच मोर स्ट्रॉन्गर। तो बेसिकली ये कैल्शियम क्या कर रहा है, आपकी बोन्स को और आपके जो टीथ हैं उनको हेल्दी बना रहा है, उनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सो वी आर डिस्कसिंग द सोर्सेज ऑफ बेसिकली मिनरल आयंस, वो कौन से हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द आयरन एंड कैल्शियम। तो वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट में हमें कैल्शियम और आयरन मिल सकता है। सो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर इनरिच्ड विद आयरन। तो आपके पास ख़ास तौर से रेड मीट है, रेड मीट, और यू कैन से लिवर में भी जो हम खाते हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मौजूद होता है, जो कि आपकी जब बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी में जो ब्लड बनता है वो भी उससे बन रहा होता है। एक समझ लें आप सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, क्योंकि आपकी बॉडी में नेचुरली भी हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन हमें इन डाइट भी न्यूट्रिएंट के फॉर्म में भी हमें चीज़ें इंटेक करनी होती हैं। तो आपके पास बीन्स भी हैं, नट्स भी हैं, एग यॉक भी है, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स। और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फिश हैं जो कि आपको यहाँ पर मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं कि दे आर ऑल्सो हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, जो कि बेसिकली इसी की टाइप है जो हम मिनरल कर रहे हैं, दैट इज़ द कैल्शियम। तो आपके पास ये जितने भी लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, तो इन सब में प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम मौजूद होता है। अब मसला ये भी तो है ना कि हमें दालें नहीं पसंद होती, हम क्यों खाएं दाल, हमें तो गोश्त पसंद है, तो हमें तो दालें बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि हम अपनी डाइट में उन चीज़ों को ऐड नहीं करते। एक वही जैसे मैंने आपको बताया कि बस वी आर जस्ट स्टकिंग ऑन द टेस्ट बड्स, कि भाई हमारी टेस्ट बड्स जो हैं हमें वो पसंद ही नहीं आ रही है। अब उसी के सामने अगर आप एक प्लेट में दाल रख दें और एक प्लेट में अगर आप ज़बरदस्त सा रोस्ट रख दें, तो ऑब्वियस है कि सबका हाथ कहाँ बढ़ेगा। तो खैर बात यही है कि वी जस्ट हैव टू टेक हेल्दी फूड जस्ट टू मेक आवर बॉडी हेल्दी। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं कंप्लीट, हमने 5 न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, देयर इंपॉर्टेंस एंड द सोर्सेज। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th वन, दैट इज़ द फाइबर। फाइबर इज़ बेसिकली, आपने कभी गौर किया हो तो जो फलों में सब्जियों में एक रेशा होता है ना, उसको फाइबर कहते हैं। एक धागे नुमा सा स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप फाइबर कह रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कि क्या करता है आपकी, अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये सेल्फ चेक करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करता है कि वाकई ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन सफिशेंट अमाउंट और नॉट। तो ये आपके पास है। और फिर अगर आपकी डाइट में फ़ाइबर का प्रॉपर अमाउंट होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। दिस इज़ वेरी मेजर थिंग। तो आप अक्सर देखते हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, दे आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बोल भी नहीं सकते, तो उनकी फिर डाइट में इस तरह की चीज़ें ऐड की जाती हैं जिसमें दे आर इनरिच्ड विद फाइबर्स। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो एज आई हैव एडेड ऑल दी पिक्चर्स के कुछ लोग होते हैं जिनको नाम याद नहीं रह जाते लेकिन उनको तस्वीरें याद रह जाती हैं। तो आई हैव एडेड ऑल दीज थिंग्स कि आपको देख भी लें, स्क्रीन पर नज़र भी आ रही हैं आपको कि द थिंग्स विच आर हैविंग हायर अमाउंट ऑफ फाइबर, जिसमें आपके पास ओट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, दालें, उसके अंदर भी प्रॉपर अमाउंट में होता है। अच्छा, इसमें पास्ता भी ऐड हुआ हुआ है, पास्ता तो पसंद ही होता है सबको, इसमें भी प्रॉपर अमाउंट में फाइबर्स मौजूद होते हैं और तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एनरिच्ड विद फाइबर्स। सो मूविंग ऑन, एंड दैट इज़ द लास्ट न्यूट्रिएंट, दैट इज़ द वाटर। आपने कभी भी वाटर को कभी भी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में ऐड नहीं किया होगा, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट। और आप अगर अपनी बॉडी की जो है वो बिल्डिंग देखें तो आपके पास भी 70 to 75% इज़ वाटर प्रेजेंट इन योर बॉडी।
अब आप बोले नहीं हमारे पास तो नहीं है, तो बेसिकली हमारे हर सेल में, हमारे हर ऑर्गन में, सब में क्या है, अगर आप एक नेट वेट निकालते हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट। अच्छा, अमाउंट ऑफ वाटर बेसिकली क्या करता है, ये ज़रूरी क्यों है हमारे, जब हर सेल में, एज आई एम टेलिंग यू कि एवरी सिंगल सेल इज़ हैविंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, हमारे सारे सेल्स डाई हो जाएंगे, आवर बॉडी ऑर्गन्स विल बी डैमेज, आवर बॉडी tissues will be damaged and ultimately our whole cell will be damaged ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम sources की बात करें, there are number of things that are enriched with water। आपको पता है, आप कोई भी फल खा लें उसमें जो जूस है ये वाटर है, कोई भी सब्ज़ी खा लें, इवन अगर आप ब्रेड, जो कि आप कहते हैं कितनी ड्राई होती है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट। सो इन एवरीथिंग अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट एंड वी हैव टू टेक, वाई, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वी विल फेस डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स द लेसर अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। So we have done this one learning objective in today's class. Now 2 learning objectives are remaining. So moving on to the next learning objective, and that is the deficiencies and what type of deficiencies are there and what type of symptoms are there। अगर हमें proper amount में, अगर हम कोई nutrient intake नहीं करते, for example we are not just talking about randomly, हम सिर्फ वही चीज़ें अपने lecture का part बना रहे हैं that are present already in the syllabus। तो very first thing we are starting with the vitamin C deficiency। If there is the deficiency of vitamin C in our body, so what will happen? What type of symptoms will be there? What type of disease we are having? So first of all, if we are not having proper amount of vitamin C, the deficiency of vitamin C is causing one of the disease, and the name of the disease is scurvy. Scurvy is one of the disease which is caused by the deficiency of vitamin C. If we are talking about the symptoms, so what type of symptoms are there? You are having, very first thing is you will feel a weakness, you will feel fatigue। So basically ये fatigue word is we are using in terms of tiredness। ये आपको एक ख़ास बहुत ज़्यादा feel हो रही होती है। और very important thing, you are having bleeding from your gums। आपके पूरे mouth में आपके जो gums हैं वो swell up हो जाते हैं and you are having bleeding। तो ये आपको picture भी नज़र आ रही है कि scurvy में ख़ास क्या हो रहा है। तो ये symptoms जब हमें पता चलते हैं तो हम भाई कहते हैं कि भाई ठीक है, ये हमें scurvy है। तो अब आपको ये भी जहन में होना चाहिए कि जो हमने पहला learning objective that we have completed के what type of things that are having proper amount of vitamin C, तो उसमें lots of citrus fruits are there जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। So this is the first thing. If you are having the deficiency of vitamin D, then what will happen? The deficiency of vitamin D will cause a disease known as rickets। rickets आपको हो जाती है। rickets क्या है, इसके symptoms क्या हैं? बेसिकली आपके जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ शुरू हो जाती हैं, आपके बोन्स फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाती हैं, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है दैट कैन नॉट बेयर द वेट ऑफ योर बॉडी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके बेंडिंग आ जाती है, आपके स्केलेटल सिस्टम में एक स्टिफनेस आ जाती है और यू कैन से भाई रेड हो जाती हैं, बोन्स स्टिफ हो जाती हैं, बहुत पेन शुरू हो जाता है। सो दीज आर दी डेफिशिएंसीज, these are the basically symptoms of deficiency of vitamin D in your body। ठीक है, तो ये हमने 2 vitamins और उनकी deficiencies और उनकी diseases पढ़ ली। Now we are moving on to the next thing, that is the deficiency of iron। अगर आयरन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाए, आयरन आपको पता है मिनरल आयन हम पढ़ कर आए हैं, अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, सो यू विल हैव दिस डिजीज़ एंड दिस डिजीज़ इज़ नोन एज एनीमिया। एनीमिया इज़ बेसिकली द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, द लैक ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। बहुत सिंपल वर्ड्स में आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाना, दैट इज़ नोन एज एनीमिया। फिर आपके पास कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि भाई बॉडी में आपके पास जो है वो इसका अमाउंट कम है। यू विल फील टायर्डनेस। आपको एकदम, अगर आप लेट सपोज बैठे हुए हैं और आप खड़े हुए हैं या लेटे हुए हैं और आप एकदम बैठे हैं, सो यू विल जस्ट फील कि भाई आपको चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी तबीयत होने लग जाती है। तो ये क्या कहलाती है, बेसिकली आपकी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है।
Second, if you are doing any work, so you will just breathe heavily. बहुत लंबे लंबे सांस लेने लग जाते हैं आप, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही होती। तो ये, और आपके स्किन का कलर, आपकी आई का कलर पेल येलो सा हो जाता है, येलोइश अपीयरेंस हो जाती है। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी। नाउ द फोर्थ थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग इज द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम in your body, so you will have the disease that is having the similar name rickets that we have done in the deficiency of vitamin D. Deficiency of vitamin D और कैल्शियम की वजह से जो डिजीज़ हो रही है that is the rickets। अच्छा, तो सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे, और सिम्टम्स में आपके पास बहुत सारे हैं। आपकी बोन्स में, आपके जो टीथ हैं उनमें पेन शुरू हो जाता है, एंड यू आर हैविंग प्रॉपर, अगर हम उसको कहें कि ड्राई स्किन आपकी अपीयरेंस अगर आप देखें तो ड्राई होना शुरू हो जाती है, स्केली स्किन जिसको आप कहते हैं। और फिर आपके जो नेल्स हैं वो ख़ास तौर से वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर बेसिकली द सिम्टम्स विच आर बीइंग कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम दैट वी हैव कंप्लीटेड। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स थे जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से एक प्रॉपर डिज़ीज़ हो रही है। उस डिज़ीज़ को समझने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं। आप जब भी इट इज़ वेरी कॉमन थिंग व्हेन एवर यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, सो यू आर जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स दैट आर द सिम्टम्स। बेसिकली यू आर सेइंग भाई आई एम हैविंग एब्डोमिनल पेन, मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, या मुझे वोमिटिंग हो रही है, मुझे कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा। सो दीज आर द सिम्टम्स। इन सिम्टम्स के बाद डॉक्टर इज़ जस्ट डायग्नोसिंग द डिज़ीज़ एंड टेलिंग यू द डिज़ीज़। ठीक है, तो ये जो सारे हमने सिम्टम्स अभी डिस्कस किए हैं इन सारी डिजीज़ के, ये अब आपको पता चल गए हैं। नाउ द लास्ट थिंग ऑफ टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ द बैलेंस डाइट। इफ़ यू आर हैविंग ए वेरी सिंपल थिंग, इसका नाम ही बता रहा है बैलेंस डाइट मीन्स बैलेंस किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन बोथ ऑफ द लेग, ये आप कह रहे हैं भाई मेरी बॉडी क्या है इस वक्त बैलेंस फॉर्म में है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपना एक पाँव हटा लिया, अब ये पाँव ऊपर कर लिया, अब मेरी बॉडी क्या हो रही है, इम्बैलेंस। अब कभी मुझसे खड़ा हुआ जा रहा है, नहीं हुआ है, मैं इसको ऐसे कर लूँ, या बहुत देर थक गई इस तरह से खड़े खड़े, अब मैंने यूँ कर लिया, अब ये मेरी बॉडी क्या है, दिस इज़ इम्बैलेंस। तो बैलेंस और इम्बैलेंस, ठीक है, बैलेंस क्या है, दिस इज़ नाउ द बैलेंस फॉर्म। ये बैलेंस है। मैं अपनी पूरी अपने जो है आपके पास हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, हमारे पास तो खैर हैंड्स और लेग्स होते हैं, मैं अपनी दोनों टांगों पे खड़ी हूँ, लेग्स हैं, तो क्या है मेरी बॉडी अभी बैलेंस फॉर्म। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, ऑल 7 मेजर न्यूट्रिएंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड in our class, in today's class, if we are having all these nutrients in proper amount and proportion, that is making our diet balanced diet. So what we have to do, we just have to take things in a proper amount. आपके पास एक बहुत आसान सी चीज़ होती है, हर चीज़ का एक चार्ट मौजूद है। यू जस्ट गो थ्रू द गूगल और आप देखें उसमें कि भाई कार्बोहाइड्रेट का डेली बेसिस पे कितना अमाउंट होना चाहिए हमारी डाइट में, इस चीज़ का कितना होना है, प्रोटीन्स कितने होने चाहिए डेली, विटामिन्स कितने होने चाहिए। तो ये क्या होगा, आपको एक चार्ट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यू जस्ट हैव टू टेक द न्यूट्रिएंट्स एंड यू विल हैव द बैलेंस्ड डाइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू हैव एन्जॉयड, आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ये तो मुझे तब पता चलेगा जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ इन नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट आई विल आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड विद टुडेज़ क्लास एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सेकंड सब टॉपिक। ठीक है, तो टिल देन you just have to be mindful that what you have to do, just Google the things which I have told you in today's class, कि कौन कौन सी चीज़ें आपने go through करनी हैं, अपने charts देखने हैं कि किस चीज़ का amount कितने % होना चाहिए हमारी डाइट में। and in next class I will discuss all these things and you just have to add or you just have to leave the comment in the comment section। और आपने 2 बातें बतानी है, एक तो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, दूसरी ये कि just give the remarks और just give your views about this set, जो कि आज हमने फर्स्ट टाइम बायो टीचर का सेट चेंज किया है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ क्लास एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड keep watching GEMS TV, especially my program, The Bio Teacher. Take care. Allah Hafiz.